Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. अगर एक एमएसएमई समझ लेगा तो उसको इस सेशन के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है उनके डिफ़ॉल्टर से, और अब डिफ़ॉल्टर्स उनसे डरेंगे, ना कि एसएमईज अपने डिफ़ॉल्टर्स से। नहीं, अगर पेमेंट आपका डिले है तो आप उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो एमएससीएफसी के अंदर जाके। નમસ્કાર, જીસીસીઆઈ દ્વારા આયોજિત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ ઉદ્યોગ સાહસિકો ખૂબ જ પ્રયત્નશીલ હોય છે એમના ધંધાના વિકાસ માટે, અને સતત એ યાત્રા ચાલતી રહે છે. પણ આ યાત્રામાં ઘણી વખત અમુક અવરોધો આવતા હોય છે, જેમાં ફાઇનાન્સને લગતી તકલીફો, પેમેન્ટને લગતી તકલીફો અને બીજી અનેક તકલીફો હોય છે. આજે આપણે ખાસ કરીને પેમેન્ટને લગતી તકલીફોની વાત કરવાના છે, જેને ડીલે પેમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. અને ડીલે પેમેન્ટને લગતી જે સમસ્યાઓ છે એના માટે આપણી ગવર્મેન્ટ દ્વારા શું શું વ્યવસ્થા છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. ગવર્મેન્ટે શું શું મિકેનિઝમ એના માટે રાખેલી છે, ગવર્મેન્ટનો શું સપોર્ટ આપણને મળી શકે છે, એના વિશે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે શ્રી અર્પિતભાઈ કચોલિયા આપણી સાથે જોડાવ્યા છે. અર્પિતભાઈ કચોલિયાનું જો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તો એ અત્યારે એફએલસી એડવાઇઝરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર ડાયરેક્ટર છે. એમની પાસે ખૂબ જ બહોળો અનુભવ છે, જે પહેલાં લીગલ એક્સપર્ટ રહી ચૂક્યા છે MSEFC કાઉન્સિલના, જેને માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ ફેસિલિટેશન કાઉન્સિલ કહેવામાં આવે છે. અને એમની પાસે ઘણા બધા એસએમઈઝ, લગભગ 10,000 એસએમઈઝને આ સબ્જેક્ટ ઉપર, ડીલે પેમેન્ટ અને એના રિઝોલ્યુશન ઉપર અવેરનેસ આપવાનો બહોળો અનુભવ છે. એમણે 50થી વધુ સેમિનાર, વેબિનાર કર્યા છે. તો આવો આપણે આજે એમની પાસેથી સમજીએ કે આ સબ્જેક્ટ ઉપર જે નોલેજ છે એને એ શેર કરે અને બધા જ મિત્રોને આ વિશેની જાણકારી આપે. મિત્રો, ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં આપનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણે પેમેન્ટને લગતી તકલીફો જે એમએસએમઈ કંપનીઝને થઈ રહી છે તેના ઉપર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવાના છીએ. અને આનો સંવાદ કરવા માટે આપણી સાથે અર્પિતભાઈ કચોલિયા સાથે છે, જેમની સાથે આપણે આ વિષય ઉપર ખૂબ સુંદર ચર્ચા કરીશું, આ વિષયને સમજીશું અને જે તકલીફો એમએસએમઈને થઈ રહી છે તેના ઉપર ગવર્મેન્ટમાં શું શું પ્રાવધાન છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. અર્પિતભાઈ, આપનું ખૂબ સ્વાગત છે. અર્પિતભાઈ, મને એ કહો કે જે એમએસએમઈ કંપનીઝ આ તકલીફમાંથી પસાર થઈ રહી છે, જેમને પેમેન્ટ સમયસર નથી મળતું અથવા પેમેન્ટ મળતું નથી, તો તેને લઈને કોઈ સુદર્શન ચક્ર છે કે જેનો ઉપયોગ કરીને તમે પેમેન્ટની તકલીફોને एमएसएमई राहत अपावी सको? डेफिनेटली सर, एक बहुत अच्छा एक्ट है, एक बहुत अच्छे प्रोविज़न है, और मैं दावा करता हूँ कि ये प्रोविज़न अगर एक एमएसएमई समझ लेगा तो उसको इस सेशन के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है उनके डिफ़ॉल्टर से, और अब डिफ़ॉल्टर्स उनसे डरेंगे, ना कि एसएमईज अपने डिफ़ॉल्टर्स से. बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने. अभी हम इस विषय में ये जानना चाहेंगे कि एमएसएमई कंपनीज़ जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, उस कंपनीज़ को इस सब्जेक्ट के ऊपर जो कंपनीज़ इस इशू में फेस कर रही है पेमेंट की प्रॉब्लम्स, उसको स्टेप 1 क्या लेना चाहिए, किस तरह से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए. सर, गुजरात की अगर हम बात करें तो जो भी एंटरप्राइजेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं और जो सर्विस एंटरप्राइजेस हैं, अगर वो किसी को गुड सप्लाई करते हैं या सर्विस रेंडर करते हैं और वो एसएमएमई में फॉल करते हैं और उनका पेमेंट उनके एग्रीड डेट पे नहीं आता है या फिर 45 डेज़ के अंदर नहीं आता है, तो गुजरात के अंदर, अगर हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर ये काउंसिल है, लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर इतनी एक्टिव काउंसिल है जिसका नाम है MSEFC काउंसिल. वहाँ पे आप अपना केस फाइल कर सकते हैं और ब्याज के साथ, पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा आप अपने डिफ़ॉल्टर से वापस ले सकते हैं. सर, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा. यस. आपने बोला एसएमई, मतलब एसएमई का मतलब क्या है, वो जरा हम दर्शक मित्रों को बताइए. एसएमई का मतलब है स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस. सरकार ने जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उनको डिवाइड किया है कैटेगरी में. सरकार ने बताया कि स्मॉल, माइक्रो, मीडियम एंटरप्राइजेस को डिफाइन करके, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जहां उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम और उनका
प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन 10 करोड़ से कम होगा तो वो स्मॉल के अंडर आएंगे, और स्मॉल और माइक्रो दोनों को ये बेनिफिट मिलेगा, और उसके लिए आपको MSCFC काउंसिल जाना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने एक चीज़ और बताई, MSEFC, इसका मतलब क्या है? MSCFC काउंसिल का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। एक ऐसी ट्रिब्यूनल, एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी कोर्ट जहां पे सिर्फ ऐसे लोगों के केस चलेंगे जो SME है और अपना गुड्स या अपनी सर्विस सप्लाई करने के बाद उनका पेमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी एक स्पेशल कोर्ट गवर्नमेंट ने बनाई, ऐसी स्पेशल कोर्ट एक एक्ट्स के द्वारा बनाई गई है जहां पे आप जा सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपको सिविल कोर्ट के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप SME हो तो आपको सिविल कोर्ट नहीं जाके स्पेशल आपके लिए कोर्ट बनाई, आप वहां जा सकते हैं। अच्छी बात है सर। मुझे ये बताइए कि MSCEFC में केस करने के लिए या इसके बारे में स्टेप 1 लेने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले एक SME को ये ध्यान रखना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन हो। अगर आपके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन है और आपके पास उसके अंदर सही रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने जितनी केसेस देखे, हमने जितनी एंटरप्राइजेस देखी है कि जहाँ बिजनेस ओनर को, जो आपके बिजनेस का मालिक है, उसको पता ही नहीं कि उसके रजिस्ट्रेशन में, MSME रजिस्ट्रेशंस में क्या एक्टिविटी उसने चूज़ करी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक्टिविटी को करेक्टली चूज़ करें। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितनी भी एंटरप्राइजेज है, आज आप जाके इस सेशन के बाद अपने घर जाके देखिए कि आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या कैटेगरी आपने चूज़ करी है। वहाँ आपको जाके कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है। जैसे मैं एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर की NIC कोड लेके उसकी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। तो जब भी आप केस फाइल करने जाएंगे, आपकी ट्रिब्यूनल ये चीज़ चेक करेगी कि आपके MSME रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है या नहीं है। आप स्मॉल में आ रहे हैं, आप माइक्रो में आ रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो सर्विस कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी सही होना ज़रूरी है। और हमने ये देखा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, अभी तक बिजनेस ओनर्स इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को काफ़ी ईजी ले जा रहे थे, बिकॉज जब भी ये केस फाइल होते हैं तब उन्हें समझ में आता है, तब उसकी अहमियत समझ में आती है। तो आप अपने अकाउंटेंट, आप अपने ऑफिस बॉय या आपके ऑफिस से कोई लड़का जो इस रजिस्ट्रेशन को देख रहा है या ऐसे रजिस्ट्रेशन लेता है, उनके भरोसे मत रहिए, अपने कंसल्टेंट्स के भरोसे मत रहिए। आप खुद जाके चेक करिए कि आप जिस एंटरप्राइजेस को रजिस्टर कर रहे हैं, क्या वो वही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रजिस्टर्ड है, वही NIC कोड के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। सर जी, हमें ये बताइए कि ये केसेस कौन फाइल कर सकते हैं, कौन MSMEs फाइल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है? जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं जो गुजरात में रजिस्टर हैं और वो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, वो सारे लोग जो गुजरात में रजिस्टर हैं वो एक केस फाइल कर सकते हैं, बशर्ते उनको स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रायर होना चाहिए। कहा जाए कि आज मेरा एक ट्रांजैक्शन आपके साथ हुआ है, आज मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई किया है, अब आप मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं केस फाइल कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरा रजिस्ट्रेशन आज की डेट से पहले का होना चाहिए। पहले हम ट्रांजैक्शन करें और जब हमें याद आए कि आज हमारा पैसा नहीं आ रहा है, उसके बाद हम जाके रजिस्ट्रेशन लें, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होगी कि हमारे रजिस्ट्रेशन प्रायर होने चाहिए, पहले के होने चाहिए, उस एग्रीमेंट के, उस कॉन्ट्रैक्ट के या उस ट्रांजैक्शन के पहले के। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखनी होगी कि आप पैरेलल कोई सिविल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिविल केसेस भी फाइल करते हैं और साथ साथ में MSME भी फाइल करते हैं। तो आप सिविल केस फाइल नहीं कर सकते, आप 2 सिविल रेमेडीज एक साथ आप उसको अवेल नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने रजिस्ट्रेशंस पहले लेने पड़ेंगे। अच्छी बात है। अच्छा अर्पित जी, ये भी बताइए कि ये केसेस फाइल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में आपको अपने सबसे पहली चीज़ आपको क्या होना चाहिए, मतलब MSME आप हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यस। और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसके बारे में ज़रा बताइए। यस, उसकी रजिस्ट्रेशन हमको पहले से लेने पड़ेंगे, करेक्ट रजिस्ट्रेशन हमें लेने पड़ेंगे, उसके इनवॉइस हम जनरेट करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। इनवॉइस जनरेट करने के बाद हमको एग्रीड डेट तक रुकना पड़ेगा। जैसे आप और मैंने डिसाइड किया कि विदिन 15 डेज ये पेमेंट होने वाला है, तो 15 दिन तक हमें रुकना पड़ेगा। 15 दिन के बाद में जाके अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो हम उसके बाद ये केस फाइल कर सकते हैं।
अच्छा, और आपने बताया कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो कि एब्सोल्युटली कंपलसरी है इसका बेनिफिट लेने के लिए, तो उसमें भी कोई चीज़ें हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सही हो और आप ठीक कैटेगरी में हो और जिससे कि आप इस बेनिफिट का फ़ायदा ले सकें? डेफिनेटली अभी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो जिस जिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में हैं उस टाइप ऑफ इंडस्ट्री का हमें रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। मान लीजिए मैं एक एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर हूँ, मान लीजिए मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो हर कैटेगरी के लिए एक अलग अलग एनआईसी कोड डिसाइड है। तो उस एनआईसी कोड में जाके हमें रजिस्टर करना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा वो सर्टिफिकेट वैलिड गिना जाएगा। तो हम जो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम उसका रजिस्ट्रेशन अपने उद्यम आधार में देखें कि हम वो रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा वो रजिस्ट्रेशन, हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारे पास कैटेगरी हमारे रजिस्ट्रेशन में है या नहीं। अच्छी बात है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई। तो मेरे ख्याल से सभी जो हमारे दर्शक मित्र जो हैं उनको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उनका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कौन सी कैटेगरी में है, कौन से एनआईसी कोड में है, ये जानना खूब ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट रहे, उससे अच्छा आपको भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए आप किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है और आपके जो उद्योग हैं आपके उस किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। तो ये चीज़ खूब ध्यान रखिए। हम आगे चर्चा को ले जाते हैं। हमें ये भी बताइए अर्पित जी कि इसमें हम किसके सामने ये केसेस कर सकते हैं? हम अगर गुजरात में एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और हमारे वैलिड रजिस्ट्रेशन है तो हम इंडिया के अंदर किसी को भी कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो पीएसयू हो। अब हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाली बहुत बड़ी कंपनी है या हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक जुरिस्डिक्शन का क्लॉज डाला हुआ है। अब वो चीज़ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब डरना उन्हें पड़ेगा, उन्हें गुजरात आना पड़ेगा, ना कि आपको उनके यहाँ जाना पड़ेगा। पहले हम देखते थे कि जो भी बड़ी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास बार्गेनिंग, जो एसएमई के पास है वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती थी और उस कारण से हम डॉक्यूमेंट को साइन किए जाते थे, जो भी डॉक्यूमेंट आए टर्म्स एंड कंडीशन हम साइन कर देते थे। लेकिन कोई डिस्प्यूट आने के बाद हमें पता चलता था कि अब इस डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए केस फाइल हमारा तो होगा बॉम्बे, हमारा तो होगा दिल्ली। तो अब एक गुजरात के छोटे व्यापारी को बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वहाँ बड़े बड़े वकील हायर करना, उन कंपनीज से लड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट के इस चुकादे से, गवर्नमेंट के इस एक्ट से अब जो कंपनी है उसे यहाँ आना पड़ेगा। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एसएमई को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप गुजरात के बाहर भी अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर आप कोई सप्लाई करते हैं और सामने किसी भी तरीके की इंडस्ट्री होती है या पीएसयू होती है या किसी भी तरीके की बॉडी होती है, मैं बात करूं किसी इंडिविजुअल को हमने सप्लाई किया, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी लोगों को एक मिथ होता है कि क्या हम सिर्फ एमएसएमई के अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं, क्या एमएसएमई के अगेंस्ट में फाइल कर सकती है, क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पैसा है तो हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सामने कोई भी हो, अब आपका पेमेंट सिक्योर है, आप उसको जाके क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। जो क्लैरिटी आपने दी उससे लोगों को अच्छे से मालूम पड़ेगा कि इसके क्या क्या प्रावधान है और किस किस रूप में ये अवेलेबल है एमएसएमईज के लिए, कि जिससे उनको इससे फ़ायदा मिल सके। और मुझे ये भी बताइए कि ये प्रावधान काफ़ी सालों से है या इसकी रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है? सर ये एक्ट की अगर हम बात करें 2006 से ये एक्ट है, इसे कहा जाता है एमएसएमई डी एक्ट। 2006 से ये एक्ट है। अब हम इसको अभी तक फुली अवेयर कर नहीं पाए इंडिया के अंदर। कोशिश है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है, आप जैसे फेडरेशंस, आप जैसे चैम्बर्स भी इस पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है अगले 4-5 साल में ये एक्ट सब तक पहुंचेगा, इसकी इंफॉर्मेशन तब सब तक पहुंचेगी। बिकॉज हम 2006 की बात करें तो गिने चुने 10-20-25 केस हुआ करते थे। आज पूरे इंडिया के अंदर हज़ारों करोड़ों रुपए लोगों के इस एक्ट के कारण, इस कोड के कारण उनको मिल पाए हैं। तो ये एक्ट 2006 से था, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो बिकॉज जिसके पास पुराने रजिस्ट्रेशंस थे वो इसका बेनिफिट ले पाए। अब पहले इशू ये होता था कि बहुत सारी कंपनीज रजिस्ट्रेशन को इतना सीरियसली नहीं लेती थी। जैसे हम आज की बात करें, आज तो बैंक आपको बोलता है कि उद्यम दीजिए नहीं तो हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। सही बात है। तो जैसी जैसी अवेयरनेस आती गई उसके साथ साथ इस एक्ट का यूज़ और अच्छे से होता गया और अच्छे से लोग इसमें से पैसा निकलवाते गए। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें गवर्नमेंट ने इतने सालों में कुछ प्रोग्रेस भी किया होगा, कुछ एनफोर्समेंट भी टाइट हुआ होगा और गवर्नमेंट की ओर से कुछ व्यवस्था भी
अच्छी हुई होगी, जिससे कि एमएसएमईज को अवेयरनेस भी बढ़े और उनके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी भी मिले। उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? डेफिनेटली अगर हम गुजरात की बात करें सर, तो हम काफ़ी लकी हैं कि यहाँ गुजरात की काउंसिल बहुत एक्टिव है। अगर मैं नाम लूँ तो इंडिया के अंदर टॉप 3 या टॉप 4 काउंसिल्स हैं, उसमें से एक गुजरात है। काउंसिल से मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ट्रिब्यूनल जो एमएसएमई कोर्ट्स हैं, तो बहुत एक्टिव हैं। और रिसेंटली गुजरात ने एक नया संशोधन किया है, एक नई चीज़ लेके आई कि अब सिर्फ पहले की बात करें तो सिर्फ एक काउंसिल होती थी, वो थी गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर के अंदर एक सिंगल काउंसिल होती थी, तो पूरे गुजरात के व्यापारी को गांधीनगर आना पड़ता था केस फाइल करने के लिए। लेकिन अब शायद पिछले साल से इसके ऊपर काम चल रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 महीने या 1.5 महीने में गुजरात को अब 5 रीजनल काउंसिल मिलने वाली है, जो कि सूरत, भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद और वडोदरा, ये 5 रीजनल काउंसिल में 50 लाख से नीचे के केसेस चलेंगे और 50 लाख के ऊपर के जो केसेस होंगे वो गांधीनगर चलेंगे। तो अब जो छोटे व्यापारी हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब हमको छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए गांधीनगर जाना पड़ेगा, हमारा खर्चा होगा, हमारा टाइम लगेगा। तो अब उनके लिए ये रीजन बनाए और वी आर वेरी लकी और हम बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे रीजनल काउंसिल हमारे यहाँ बनेंगे। और जितना रीजनल काउंसिल एक्टिव होंगे, लोगों के पेमेंट उतना ही जल्दी रिकवर हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो अभी तक लोगों को ये परसेप्शन था कि ये हम लोग खुद पे ही डिपेंडेंट है पेमेंट रिकवर करने के लिए, आज लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रावधान करे हुए हैं जिसका कि बेनिफिट लिया जा सकता है। अब इस विषय में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई एमएसएमई पेमेंट रिकवरी से परेशान है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप वो क्या कर सकती है, जिससे कि स्टेप 1 लेके वो सामने वाली पार्टी को अलर्ट दे सके और उसके बाद पेमेंट रिकवरी का कुछ एक्चुअल रियलाइजेशन शुरू हो सके? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप किसी कंपनी को कोई गुड्स दे रहे हैं या आप किसी कंपनी को कोई सर्विस दे रहे हैं, अगर आपका पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ सतर्क होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज मैंने ऐसे देखी है जो ये सोचती है कि नहीं मुझे कल धंधा मिलेगा, परसों धंधा मिलेगा, उस चक्कर में 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के पेमेंट पेंडिंग रह जाते हैं। जब वो इतना लंबा पेंडिंग रह जाता है पेमेंट, तो उसको रिकवरी करने में उतनी ही मुश्किल आती है। तो सबसे पहले एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए एसएमई हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपका एग्रीड डेट निकला, आप सामने वाले को बताएं, जो भी कंपनी है उसको बताएं आप एक एसएमई हो और आपका पेमेंट विद इन 45 डेज उनको करना ही होगा। अगर विद इन 45 डेज या एग्रीड डेट आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप समाधान पोर्टल, एमएसएमई समाधान पोर्टल गूगल पे सर्च करें, एमएसएमई समाधान पोर्टल पे जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। अच्छी बात है। तो ये समाधान पोर्टल की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल है या वो प्रोसेस ऑफलाइन भी हो सकती है, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। जो समाधान पोर्टल है वो हमारे पूरे प्रोसेस का इनिशिएशन होता है। वहाँ से एक इनिशिएशन होता है, जब हम जाएंगे ये प्रोसेस जो पूरा ये डिजिटल भी आपने जैसी बात करी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। काफ़ी लोगों को ये शिकायत रहती है कि सर हमने समाधान पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर दी लेकिन अभी तक हमारा पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कंप्लीट प्रोसीजर है। हो सकता है, मैंने जितने केसेस देखे हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम केस फाइल करते हैं एमएसएमई समाधान पोर्टल पे, तो जो जेन्युइन पेमेंट्स हैं, जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, एसएमई की कोई गलती नहीं है, सप्लायर की कोई गलती नहीं है और सामने वाला सिर्फ आपको टाल रहा था, वो पेमेंट्स वहाँ 70% टाइम वो पेमेंट वहाँ दे देता है। बिकॉज जब भी आप जाके समाधान पोर्टल पे अपनी कंप्लेन करते हैं तो सामने वाले के पास भी एक नोटिस जाता है कि भैया अब आप सतर्क हो जाओ, अब आपको अपना पेमेंट और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट सामने वाले को पेमेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमने देखी कि जहाँ जहाँ जो लोग टाल रहे थे वो इसको टालना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सतर्क होना पड़ेगा एक एसएमई को कि आप अपने पेमेंट्स को बहुत डिले ना करें और टाइमली समाधान पोर्टल का यूज़ करें। आप चाहते हैं तो आप पहले उनसे बात करें, नेगोशिएट करें, मीडिएट करें। नहीं होता है तो आप तुरंत प्रभाव से कोर्ट में जाइए। अच्छी बात है। इसमें मुझे एक ये चीज़ भी जाननी है कि आप कितने समय तक कोई जो पेमेंट आपका बाकी है, बकाया जो बाकी है, उसका केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इनवॉइस 1 साल पुराना है, अभी तक आपने कस्टमर के साथ आप फॉलोअप कर रहे हैं, फिर भी आपका पेमेंट नहीं आ रहा है,
तो आप कितने साल तक, ऐसे कोई पुराने केस है, मान लीजिए 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, और आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी इतना पुराना है, तो आप कितने साल तक इस तरह के केसेस को फाइलिंग कर सकते हैं? हमारा एक्ट ये कहता है और कानून ये कहता है कि विद इन 3 ईयर्स हम उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो केस टू केस डिफर करती है सर। पर हमको ये ध्यान रखना है कि अगर 3 साल से पहले हमको केस फाइल करना ही है, बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस में एक चीज़ नोट करी है कि सामने वाली पार्टी आपको 3 साल तक लटकाएगी, आपको 3 साल तक डिले करेगी, बिकॉज उसे पता है कि 3 साल बाद आप उससे पेमेंट नहीं मांग सकते। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा पेमेंट कोई ड्यू है, उसको 3 साल से पहले जाके हम उसको केस फाइल करें और उसको जाके एमएसएमई समाधान पोर्टल पे उसको रजिस्टर करें। अच्छी बात है। अच्छा, अभी हमारे इंडिया में काफ़ी सारा पोर्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी है, तो क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसी बेनिफिट का फ़ायदा ले सकती है? जो कि एसएमई कंपनीज़ हैं वो इसका फ़ायदा ले सकती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। जो क्वेश्चन आपका था सर कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सर, मैं आपको थोड़ा सा उससे अवगत कराता हूँ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर परचेज ऑर्डर नहीं देते, शायद आपने देखा होगा। बिल्कुल। वहाँ ऑर्डर्स होते हैं वो वर्बली होते हैं, और आज भी हम इस स्थिति में हैं कि अगर हम सामने वाले को कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपको उसने 1 करोड़ का ऑर्डर दिया है, आपने वो फुलफिल किया, अब अगली बार आप जब कहेंगे ना उससे कि भैया आप परचेज ऑर्डर भेजिएगा मुझे, तो आज भी हम उस स्थिति में, आज भी हम उस माइंडसेट से कि सामने वाला उसमें ऑफेंड फील करने लग जाएगा। लेकिन आपको एज ए एसएमई, आपको ऑफेंडेड फील हो या ना हो, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखने हैं। और अच्छी चीज हमारे लिए ये है यहाँ पे कि अगर देखिए, आप समझिए कि गवर्नमेंट ने जब ये एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ने हर तरीके की इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया। गवर्नमेंट समझती है कि कितनी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री आज भी इंडिया में है। आज हम जा रहे हैं ग्रोथ की तरफ, लेकिन आज भी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर है। तो परचेज ऑर्डर नहीं भी होता है और आप वर्बली भी ऑर्डर दे रहे हैं, आप वर्बली भी आप फोन से दे रहे हैं, आप ओरली बोल रहे हैं, तो वो ऑर्डर के अंदर भी आप यहाँ केस फाइल कर सकते हैं। बस मेरी आपको सजेशन ये है कि अब हम धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ आए, ताकि ये प्रॉब्लम्स और क्रिएट ना हो। गवर्नमेंट आज आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट इसमें केस फाइल करने के लिए अलाउ भी करेगी। हमको क्या करना है, हमको प्रूफ तो करना पड़ेगा, हमको इनवॉइस दिखाने पड़ेंगे, हमको डिलीवरी चालान दिखाने पड़ेंगे। तो जिस तरह से हम जितने ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतने एविडेंस हम क्रिएट कर पाएंगे हमारे केस फाइल करते टाइम। सही बात है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आपने जो चीज़ें बताई कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए ताकि आप बेटर प्रिपेयर कर पाए, और आपके पास ये एविडेंटरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से MSEFC के सामने प्रेजेंट कर पाए, और आपका केस स्मूथली गवर्नमेंट के पास भी प्रेजेंट हो सकता है और आपको आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। डेफिनेटली, ये अच्छी बात है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके समाधान पोर्टल से भी आगे कुछ गवर्नमेंट के प्रावधान है, जिसमें कि आप, अगर आपका पैसा आपको 15 दिन में नहीं मिल रहा है, अगर महीने में नहीं मिल रहा है, 3 महीने में नहीं मिल रहा है, तो आप आगे क्या कर सकते हैं? समाधान पोर्टल का स्टेज इस तरह से है कि जब हम समाधान पोर्टल, आप ऑनलाइन सर्च करिए समाधान पोर्टल MSME, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाके वो वेबसाइट ओपन करिए। आप उस वेबसाइट ओपन करने के बाद अपना उद्यम नंबर डालिए, अपना OTP डालिए जो उद्यम नंबर में रजिस्टर्ड है जी। अब काफ़ी लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये OTP कहाँ आएगा, किस नंबर पे आएगा। तो जिस उद्यम नंबर को मोबाइल से रजिस्टर किया है आपने, जिस नंबर से रजिस्टर किया है उस उद्यम नंबर को, तो उस उद्यम नंबर के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उद्यम, उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखा होगा, उस पर वो OTP आएगा, आप OTP डालें। उसके बाद एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, केस फाइलिंग का एक ऑप्शन होगा। उस फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल्स तो वहाँ भरी होगी, लेकिन सामने वाले की डिटेल आपको फिल करनी है, वो किस तरह की इंडस्ट्रीज़ है और किस तरह की, जैसे मान लीजिए वो PSU है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, वो इंडिविजुअल है, आपको फिल करना होगा। उसकी ईमेल ID, उसका एड्रेस आपको फिल करना होगा, और उन सबको फिल करने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने हैं। एक तो आपका इन्वॉइसेस जो ड्यू है, काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि सारे इन्वॉइसेस अटैच कर देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इन्वॉइसेस हमारे पेंडिंग है हमको उसमें अटैच करने हैं, साथ ही साथ वर्क ऑर्डर उसमें अटैच करना है। अब जो आपका पहले सवाल था कि जरूरी नहीं है कि वर्क ऑर्डर सब में हो जी, तो उस केसेस में हमें एक एफिडेविट सबमिट करना है कि ये जो ऑर्डर था ये वर्बली था, और उसको अटैच करके हमको सबमिट करना है। और जब हम सबमिट करेंगे तो जो ईमेल ID हम बायर की सबमिट कर रहे हैं उस पर एक मेल जाएगा, और उस मेल जाते ही आप देखिए उसका कमाल, वो मेल जाते ही उस कंपनी का ओनर, उस कंपनी का मालिक ये कहेगा कि
अच्छा आप एमएसएमई आप आइए, आपको पहले बताना चाहिए था और आपका ये पेमेंट है, आप इसको लेके जाइए, लेकिन ये केस हमारे सामने से विड्रॉ करिए। बिकॉज गवर्नमेंट ने आज की डेट पे इस चीज़ को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि हर बड़ी कंपनी को अब उसके ऑडिट के अंदर बताना पड़ेगा कि कितने एमएसएमई को पेमेंट नहीं दे रहा है, कितने एमएसएमई का पेमेंट ड्यू है। सही बात है। अर्पित जी, आपने ये चीज़ बहुत ही अच्छी बताई कि अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और वो बड़ी कंपनी या पीएसयू कंपनी आपको सामने से बुला के इस चीज़ का समाधान करना चाहेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आप ये एम्पावर्ड फील कर सकते हैं कि आपका केस जो है वो आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास गवर्नमेंट की पूरी व्यवस्था है जिसका आप फॉर्मली एक चैनल के माध्यम से फ़ायदा ले सकते हैं और आपके केस को आप स्ट्रॉन्ग बना के उसका रेजोल्यूशन ला सकते हैं। અર્પિત જી, મને એ જણાવો કે આજે એમએસએમઈના કેસીસની આપણે વાત કરી રહ્યા છે, ડીલે પેમેન્ટના, એમાં કેટલી અમાઉન્ટ સુધીના કેસીસ એસએમઈ કંપનીઝ સામેવાળી પાર્ટી ઉપર કેસ કરી શકે છે? એની કોઈ લિમિટ છે? એના વિશે જરા જાણકારી આપો। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे कि काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है आज भी कि हम कितने अमाउंट के बाद केस फाइल कर सकते हैं और कितने अमाउंट तक केस फाइल कर सकते हैं। तो अब किसी भी एसएमई को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1 रुपया भी अटका है तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब इससे ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब हमारा पेमेंट तो आ जाता है, अब वो पेमेंट आया 6 महीने बाद, वो पेमेंट आया 1 साल बाद, तो अब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेमेंट आपका डिले है तो आप उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो एमएससीएफसी के अंदर जाके। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट डिले भी आया तो आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो और नहीं आया तो अमाउंट और इंटरेस्ट आप सामने वाले से क्लेम कर सकते हैं। और रही बात मैक्सिमम अमाउंट की, तो मैक्सिमम जैसी कोई अमाउंट नहीं है। आप कितना भी क्लेम किसी भी पार्टी के सामने एमएससीएफसी के अंदर क्लेम कर सकते हो। बस हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जिस तरह से नया स्ट्रक्चर है गुजरात का, 50 लाख के नीचे के केस अपनी अपनी रीजन्स में होंगे, जो 5 रीजन की हमने बात करी, और 50 लाख के ऊपर के केस आपके गांधीनगर के अंदर होंगे। ठीक है। और इसके अलावा मुझे लगता है सभी एसएमई कंपनीज़ को एक कस्टमर के साथ उनकी जो रिलेशनशिप होती है उसके साथ एक डर सा रहता है कि अगर मैं इनके सामने एक केस करता हूँ तो हमारी रिलेशनशिप हैम्पर होगी, वो ख़राब होगी, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने वाले बिज़नेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगे। तो इस डर से बाहर निकल के इस तरह के जो पेचीदा मामले हैं उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वो डर के माहौल से बाहर निकलना है आपको। और क्योंकि एज ए एसएमई आपका एक राइट बनता है, आपने गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्था दी हुई है, तो उसका आप कैसे वो डर के माहौल से बाहर निकल के आप इस इशू को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हो? सर मैं ये समझता हूँ कि डर है ही नहीं, अवेयरनेस की कमी है। जिस दिन हम अवेयर हुए, ये डर, मैं आज की बात करूँ तो डर जो है ना वो बड़ी कंपनीज को है, डर एसएमईज को नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इतने सारे सैंक्शंस बड़ी कंपनीज पे लगाए जाते हैं, इतनी इंटरेस्ट पेनल्टीज उनके ऊपर लगाई जाती है। गवर्नमेंट कहती है बड़ी कंपनीज को कि आप हमें ब्यौरा दो कि 45 डेज में आप अपनी किस किस स्मॉल बायर को, माइक्रो बायर को पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो अब स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज एसएमईज को ये समझना होगा कि डर का माहौल उनके लिए नहीं है, डर का माहौल सामने वाली कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए। हमारे पास बहुत स्ट्रांग टूल है, हमारे पास बहुत स्ट्रांग लॉज है, तो हमें अब चिंता करने की जरूरत मैं नहीं समझता। हमारे में दिक्कत आ रही थी हमारी अवेयरनेस ना होने की, और इस सेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितने एसएमईज इसको देखेंगे वो इससे अवेयर होंगे और वो डर का माहौल शायद अब बड़ी कंपनीज के पास चल जाएगा। बहुत अच्छा अर्पित जी, मुझे लगता है आपने काफ़ी हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के मेंबर्स का और व्यूवर्स का एक जो मन पे जो एक भार सा रहता है, एक बर्डन सा रहता है, उस सवाल का आपने अच्छे से इसका जवाब दिया। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम इसके टॉपिक के ऊपर हम आगे के जो प्रोसीजर हैं, समाधान पोर्टल के बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो उसके ऊपर हम विस्तृत में चर्चा करें। बट उसके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला है और बहुत ही बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है इसके लिए हमें और भी दूसरे एपिसोड्स की करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें और विस्तृत जानकारी अर्पित जी से लेनी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स अपने जो सवाल हैं, अपने जो कमेंट्स हैं, वो भी आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम उस इश्यूज़ को भी हम एड्रेस कर पाए और अर्पित जी से उसकी भी हम चर्चा कर पाए। अर्पित जी, मेरे ख्याल से काफ़ी एमएसएमईज, स्पेशली एसएमई कंपनीज़ का ये भी एक डर रहता है कि इस सब में फ़ाइल करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, काफ़ी दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती रहेगी,
ये एक्सरसाइज बहुत लंबी होती है, इसके कुछ परिणाम आते नहीं हैं और वो लोग गवर्नमेंट के साथ फाइलिंग करते रहेंगे, पेपर वर्क सबमिट करते रहेंगे, बट कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये जो लोगों के मन में जो ये मिथ रहती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये समझता हूँ कि एमएसएमई एक्ट से स्ट्रॉन्ग एक्ट या स्ट्रॉन्ग प्रोविजन आज की डेट में किसी एसएमई के लिए है नहीं, उसके पास ऐसा टूल नहीं है। क्या बात है। और इसका एग्जांपल देते हुए मैं आपको 2 केसेस बताता हूँ जो मैंने मेरे सामने देखे हैं। एक केस में एक कंपनी को 20 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग के सामने 5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट मिला है, और वो भी पीएसयू के सामने। तो जो लोगों का डर है, प्रॉब्लम ये है कि वो अनअवेयरनेस के कारण डर है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम जितना लोगों को अवेयर करेंगे, उनका डर जाता जाएगा और उनमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रोसीजरली वहाँ पे केस फाइल कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट सही है, हमारे कंटेंशन सही है, तो हमारा पैसा आज नहीं तो कल मिलना ही है। तो ये एक केस मैंने बताया जो पीएसयू के सामने था। अभी मैं आपको एक और केस बताता हूँ जिसके अंदर दोहराजी से एक छोटे से बिजनेसमैन, जिसने बहुत उम्मीद के साथ लोन लेके सब कुछ हेल्प लेके उसने एक इंडस्ट्री स्टार्ट करी, और उसको 1 करोड़ प्लस का एक ऑर्डर मिला, और वो ऑर्डर उसे बॉम्बे की काफ़ी बड़ी कंपनी के सामने मिला। तो जब उसने ऑर्डर फुलफिल किया, उसके बाद भी उसका पेमेंट नहीं आया, और जब पेमेंट नहीं आया तो उसको कंपनी लिटरली अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी पिछले 1 साल से। जब वो हमारे पास आया ऐसा इशू लेके, तो हमने सबसे पहले समाधान पोर्टल पे उसका केस फाइल किया, और समाधान पोर्टल पे केस फाइल होते ही आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 3 डेज में उसका वो 1 करोड़ रुपए आ गया, और आज हम उसके इंटरेस्ट के लिए केस फाइल कर रखा है और उसके ऊपर लड़ रहे हैं। लेकिन एक अवेयरनेस होने से, एक आपकी जागरूकता होने से इतनी चीज़ें हो जाती है जो आपको पता ही नहीं, शायद उन्हें पता ही नहीं था 1 साल से कि उनके पास इतना बड़ा टूल है। तो जब उसने वो जो आपने बताया था कि जो शस्त्र उन्होंने यूज़ किया, जो शस्त्र की आप बात कर रहे थे, वो शस्त्र उसने 1 साल बाद यूज़ किया और विद इन 3 डेज उसका पैसा आ गया। बिकॉज बड़ी कंपनीज भी ये समझती है, लेकिन बड़ी कंपनीज नहीं चाहती है कि एसएमई अवेयर हो। बहुत सारी बड़ी कंपनी, जो हम सबकी बात नहीं करेंगे, पर बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनका पैटर्न हो गया है ये लोगों का पेमेंट डिले करना जी। तो उनके अगेंस्ट में इससे स्ट्रॉन्ग कोई टूल नहीं है। जी अर्पित जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि ऐसे भी इसके पास क्या क्या सुदर्शन चक्र जैसे हथियार हैं जिसको यूज़ करके जो अपने पेमेंट के प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं, और स्टेप 1 लेके ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि एसएमई कंपनीज़ के जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप समाधान पोर्टल को आप लॉगिन करिए, उसके ऊपर आपकी केस की फाइलिंग करिए, और उसका रिज़ल्ट ज़्यादातर कंपनियों के साथ विद इन 15 डेज़ या विद इन शॉर्ट टाइम आ ही जाता है। तो हमें एसएमई कंपनीज़ को एक डर के माहौल से बाहर निकल के इस इशू के बारे में खुल के जो गवर्नमेंट के प्रावधान है उसका फ़ायदा लेना है, और इससे हमें और भी आसानी हो जाएगी। और इसी सब्जेक्ट में हम आगे भी और चर्चा करना चाहेंगे कि इसके आगे के प्रावधान गवर्नमेंट के क्या क्या है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी के पेमेंट इसके बाद भी नहीं आते हैं, समाधान पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद भी नहीं आते हैं, तो इसके बारे में और क्या चीज़ें हो सकती है, गवर्नमेंट किस तरह से और सपोर्ट कर सकती है। बट इसके लिए हम व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे, और इसी चर्चा को हम आगे जारी रखना चाहेंगे। तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप बिल्कुल यहाँ यूट्यूब पे बताइए, ताकि हम उस चीज़ों को भी हम एड्रेस कर पाए और इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखें। थैंक यू। नमस्कार भाइयों અને બહેનો, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચાનો આ એપિસોડ આપ સૌના માટે ખૂબ જ જ્ઞાનવર્ધક રહ્યો હશે। મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ। વિકાસની આ હરણફાળમાં, વિકાસની આ યાત્રામાં ઘણા નાના મોટા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે। ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી નાના મોટા વેપારીઓ તેમજ સરકાર વચ્ચેનો એક સેતુ છે, બ્રિજ છે। તે જવાબદારીના ભાગરૂપે ચેમ્બર દ્વારા વારંવાર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ કાયદાકીય નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે અને યોગ્ય રજૂઆતો સરકારમાં કરવામાં આવતી હોય છે। અમને ચોક્કસ ખાતરી છે આ શ્રેણી દ્વારા આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું હશે, જે તમને તમારા વેપાર ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે।
મિત્રો, જીસીસીઆઈ દ્વારા એક નોમિનલ મેમ્બરશિપ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તે દ્વારા નાનામાં નાના વેપારીઓના સશક્તિકરણ માટે ચેમ્બર દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. આપ સૌને નમ્ર અપીલ છે કે આપ પણ સૌ નોમિનલ મેમ્બરશિપ દ્વારા ચેમ્બર સાથે જોડાઓ. સાથે સાથે જીસીસીઆઈ દ્વારા એક હેલ્પ ડેસ્ક પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનો ઈમેલ એડ્રેસ સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે. તેના દ્વારા આપ સૌ આપના પ્રશ્નો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને મોકલી શકો છો. તેના યોગ્ય સમયસર ઉકેલ માટે અમે તત્પર છીએ. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.